Hello friends, if you completed your Master of Social Work or Bachelor of Social Work and you are worrying about your career, then don't worry, I am here to help you in every aspect. This channel is fully dedicated for social worker and you will find many informative video in this channel. So let's move to our today notification. Today we will discuss about the Department of Health and Family Welfare have a very wonderful job opportunity for the social worker. This opportunity for both category like MSW as well as BSW category, and this vacancy is also for the freshers also. So let's move toward the notification. This is the public notice released by the government of Punjab, and we will discuss about the various vacancy under the Telemanas cell for the Amritsar, and here are lot of vacancy for the other category also, but we are here to discuss only about the social work. So let's move toward the those vacancy which can be filled by the only by the social worker. On serial number 3rd you will see the post name clinical psychologist psychiatric social work or psychologist social worker or psychiatric nurse. These are the under the serial number 3 or and these all three vacancy have the eligibility criteria related with the social work. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्क की, और इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. फॉर दिस पोस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास एमए और एमएससी डिग्री इन साइकोलॉजी और फर्स्ट और सेकेंड क्लास एमए और एमएसडब्ल्यू डिग्री इन मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क और मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल इन रिलीवेंट स्पेशलाइजेशन एंड आरसीआई सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नॉट required for psychiatric social worker and the Punjab pass up to metric standard is required. यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको क्या है, जो लोग भी एमए या एमएससी किए हैं साइकोलॉजी से वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने एमए या एमएसडब्ल्यू डिग्री की है फॉर द इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क दे कैन अप्लाई. और अगर आपने एमफिल किया है तो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. स्पेशली जब हम बात करते हैं आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, उस केस में आपका जो सर्टिफिकेशन है वो आरसीआई सर्टिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है. बट अगर हम पोस्ट की बात करें साइकेट्रिक सोशल वर्क की तो उसके लिए इस तरह का कोई भी आरसीआई सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन है स्पेशली मैट्रिक का, यानी कि आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. मैट्रिक स्टैंडर्ड का जो पढ़ाई है वो पंजाबी में होना चाहिए, यानी कि आपको पंजाबी आना चाहिए और अप टू 10th क्लास आप कम से कम पंजाबी लैंग्वेज पढ़े हों. Now we will talk about the age limit for this post. Age limit is 45 year and you can apply for this post. Now the salary for this post is 40,000 per month. That will be your monthly income for this post. Now I will discuss about the psychologist and social worker post. For this post the eligibility criteria are different. There are 3 kind of vacancy for those social work can apply. We are discussing one by one. First of all we discuss about the clinical psychologist and the psychiatric social work. Now I will talk about the social worker post. For this post first and second class MA और MSc degree in psychology और first और second class MA और MSW degree in medical psychiatric social work are eligible. So इसके लिए जिन्होंने MA या MSc किया है साइकोलॉजी से या फिर जिन्होंने एमए या एमएसडब्ल्यू कोर्स किया है मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क में वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट घट के 18 से 37 साल हो गया, 18 to 37 ईयर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग अगर कोई एज रिलैक्सेशन है तो वो मे भी यहाँ पे अप्लीकेबल हो. साथ में आपको पंजाबी पास होना चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. अब बात करें सैलरी की तो सैलरी इस पोस्ट के लिए होगी 30,000 पर मंथ. एंड लास्टली टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट नेम काउंसलर पोस्ट का वैकेंसी है और इसके लिए 20 वैकेंसी है फॉर टेलीमानस सेल एंड द लोकेशन फॉर दिस पोस्ट इज अमृतसर एंड द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इज गिवन इन डाउनवर्ड्स. वी विल डिस्कस फर्दर. नाउ वी विल टॉक फर्स्टली अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द पोजिशंस अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इज रिजर्व फॉर दिस पोस्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या सोशल वर्क चाहिए और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज एमए इन सोशलॉजी साइकोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी सोशल वर्क और नर्सिंग विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ वर्क दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. बट प्रेफरेंस उनको मिलेगा दोज हु हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग और एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम.
सो काउंसलर पोस्ट के लिए जिन्होंने भी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी से या सोशल वर्क से मास्टर डिग्री किया है या फिर सोशलॉजी और साइकोलॉजी से, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें अगर आपने BSW के साथ साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अगर किसी भी मेंटल हेल्थ सेक्टर में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने MA इन सोशल वर्क या फिर MSW कोर्स किया और फ्रेशर्स है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 18 से 13 ईयर्स है एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और सेम कंडीशन है, पंजाबी पास अप टू मैट्रिक्स स्टैंडर्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। और अंत में यहाँ पे एक दिया गया है कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरी एंड द काउंसलिंग वो आना चाहिए। अगर आपने काउंसलिंग पे ऑलरेडी काम कर चुका है, मेंटल हेल्थ में स्पेशली काउंसलिंग में, तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। बात करें सैलरी की, तो 30,000 पर मंथ होगा इस पोस्ट के लिए। नाउ वी विल लुक आफ्टर द कैटेगरी वाइज हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर विच कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब, उसके लिए काउंसलर के पोस्ट के लिए स्पेशली ये दिया गया है चार्ट। तो काउंसलर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है बैकवर्ड क्लासेस पंजाब के लिए। बैकवर्ड क्लास पंजाब फीमेल के लिए एक पोस्ट है, एक सर्विसमैन के लिए भी एक सर्विसमैन वीमेन के लिए भी एक सीट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पंजाब के लिए एक सीट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पंजाब फीमेल के लिए एक सीट है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, फीमेल के लिए 2, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1, शेड्यूल कास्ट स्पेशली यहाँ पे नाम दिया गया पंजाब में, उसके लिए 2 पोस्ट है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीमेल मेल और कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। जो 20 सीट्स है काउंसलिंग पोस्ट के लिए, उसका ही कैटेगरी वाइज यहाँ पे विवरण दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा और जान लें कि यहाँ पे और क्या कुछ है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं कि ऑल पोस्ट विल बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर द 1 ईयर टू बी रिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडक्टेड एंड परफॉर्मेंस ईयर एवरी ईयर। कि ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा 1 साल के लिए, और अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा तो फर्दर रिन्यू किया जा सकता है। एज लिमिट जो काउंट होगा वो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग होगा, और रिजर्वेशन विल बी एज पर द एप्लीकेबल रूल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट पॉलिसी गाइडलाइन। यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी को लेके गाइडलाइंस है वही फॉलो होगा स्ट्रिक्टली, तो उसको आप लोग समझ लीजिए और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो उस समय अपना कैटेगरी बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आप फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपको रिक्रूट नहीं किया जाए। द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, और ये सब दिया गया सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है, कैसे होगा, वो सब दिया गया है डिटेल में। जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका नाम डिस्प्ले होगा इस वेबसाइट पे। तो आप इस वेबसाइट को अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो भी, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगा इस वैकेंसी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो www.nhm.punjab.gov.in पे इसको फॉलो करते रहिए। और यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी है जो कि NHM है, वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है अगर आप किसी भी तरह का मिस्टेक कमिट करते हैं वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। सो आप बहुत ही केयरफुली अपने एलिजिबिलिटी को देखिए और सारे कॉलम को एज़ पर योर क्वालिफिकेशन उसको आप सही सेलेक्ट करके अप्लाई कीजिए। यहाँ पे वैसे बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया गया है, लाइक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आई विल नॉट डिस्कस ईच पॉइंट, बट मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और आराम से एक एक पॉइंट को, ये जो दिया गया है पूरा सीरियल वाइज, इस सब पॉइंट को आपको बहुत ही बारीकी से समझना है, क्योंकि अगर आप इसमें चूक जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ऑल दिस पोस्ट स्टार्टेड ऑफ ऑनलाइन सिस्टम इज 15th of November 2022 and the last date of submission of online application form is 25th of November 2022। यानी कि आपको जो फॉर्म भरना है ना, वो पूरी तरह से क्या करना है, ऑनलाइन सिस्टम में ही अप्लाई करनी है। 15 नवंबर से शुरू होगा और 25 नवंबर तक, यानी कि आपके पास 10 दिन का वक्त है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और आप इसके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहिए। आप सबका बहुत प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही हम हमेशा जुड़ते रहेंगे और आप सभी से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी जो कि ऑथेंटिक है। और आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प भी करती है। अगर हेल्प करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, या फिर किसी तरह का कोई भी एडवाइस हो, फीडबैक है, क्रिटिसिज्म हो, ऑल आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं, आप अपना सजेशन देख सकते हैं। आपको लगता है कि वीडियो को कैसे बनाना चाहिए उसमें भी सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ नया सेक्शन मैं जोड़ना चाहूँ इस चैनल पे, लाइक सोशल वर्क से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूविंग द चैनल। तो अब अभी के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। थैंक यू।